جنوبی پنجاب کے مختلف اسپتالوں میں طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ میاں والی DHQ اسپتال میں سہولیات کی عدم فراہمی، ادویات بھی دستیاب نہیں۔ مریم نواز شریف اسپتال گڑھا موڑ میں طبی عملے کی شدید کمی ہے۔ علاج معالجے کا نظام بری طرح متاثر ہے۔ میاں والی DHQ ہسپتال میں سہولیات کا فقدان، مریضوں کے لیے پینے کا پانی اور بیٹھنے کے لیے مناسب انتظامات نہیں۔ شہریوں کے مطابق ہسپتال میں ادویات دستیاب نہیں۔ ایمرجنسی کے علاوہ تمام مریضوں کو باہر سے ادویات خریدنا پڑتی ہیں۔ جو چیز وہ کہتے ہیں پرچی اٹھا کے دیتے ہیں، یہ لے آؤ، پیسے لے آؤ، ادھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر سے نہیں، صرف ایمرجنسی کی ملتی ہے، یہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ اور ادھر بھی لے آؤ۔ ادھر مریم نواز شریف ہسپتال گڑھا موڑ میں طبی عملے کی شدید کمی کے باعث علاج اور معالجے کا نظام بری طرح متاثر ہے۔ لیڈی ڈاکٹر، ڈینٹل ڈاکٹر کی سیٹ عرصہ دراز سے خالی ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں فوری طور پر سٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے، جبکہ رحیم یار خان میں کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز پروگرام گھٹائی میں پڑ گیا۔ 770 منظور شدہ سیٹیں ہیں، مگر صرف 75 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز LHV تعینات کیے گئے۔ ماں اور بچے کی صحت کا پروگرام بھی فائلوں تک محدود، فیلڈ میں عملہ ناپید۔ حکومت پنجاب نے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کر دی۔ 16 سے 18 سال کے نوجوانوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت ہے۔ نوجوانوں کو مقررہ شرائط کے تحت جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ جاری کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سیٹ بیلٹ کا استعمال تمام سڑکوں پر لازمی قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عوامی مطالبے پر طلبہ کے لیے بڑا اقدام۔ 16 سے 18 سال کے نوجوانوں کو موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دے دی گئی۔ پنجاب حکومت نے اس حوالے سے باقاعدہ قانون سازی کر دی۔ پنجاب حکومت نے اسٹینڈنگ کابینہ کمیٹی کی سفارشات پر توثیق کی۔ اس قانون کے تحت بچوں کے لیے جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ متعارف کرایا گیا اور مقررہ شرائط کے تحت جووینائل ڈرائیونگ پرمٹ جاری کیا جائے گا۔ موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 میں ترمیم کی منظوری اب پنجاب اسمبلی سے ہوگی۔ سیٹ بیلٹ کے لیے بھی قانون سازی میں ترمیم۔ اب سیٹ بیلٹ کا استعمال تمام سڑکوں پر لازم ہوگا۔ پنجاب میں سیٹ بیلٹ کے لیے نوٹیفائڈ روڈز کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوجوانوں کے لیے ایک اور شاندار پروجیکٹ، پرواز کارڈ منصوبے کے لیے 3 سال کے ابتدائی اخراجات کی منظوری دے دی گئی۔ 3 سال میں 45,000 نوجوان بیرون ملک روزگار حاصل کریں گے۔ ابتدائی اخراجات کے لیے نوجوانوں کو 1.5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک بلا سود قرض ملے گا۔ پنجاب حکومت کا نوجوانوں کے لیے پرواز کارڈ منصوبہ P&D بورڈ نے 3 سال کے ابتدائی اخراجات کی منظوری دے دی۔ 3 سال میں 45,000 نوجوان بیرون ملک روزگار حاصل کریں گے۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے منصوبے کے لیے 6.9 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ منصوبے کے تحت صحت، تعمیرات، ہوٹلنگ، IT سمیت مختلف شعبوں میں افرادی قوت تیار کی جائے گی۔ پرواز کارڈ سے پہلے سال 8، دوسرے سال 15 اور تیسرے سال 22,000 افراد مستفید ہوں گے۔ اس اسکیم میں بائیو میٹرک، میڈیکل، پروٹیکٹریٹ اور ایئر ٹکٹ کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ پرواز کارڈ کے ذریعے ہر فرد کو 1.5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے ملیں گے۔ 3 ماہ رعایتی مدت کے بعد 15 ماہ میں آسان اقساط کے ذریعے رقم کی واپسی ہوگی۔ ماہانہ قسط 12,000 سے 80,000 روپے تک مقرر کی جائے گی۔ قرض کی رقم میں سے 20% کیش نکالنے کی سہولت ہوگی۔ پرواز کارڈ کے لیے جاب آفر لیٹر اور پنجاب کا رہائشی ہونا لازمی ہے۔ منصوبے سے سالانہ $200 ملین تک تفصیلات زر متوقع ہیں۔ سونے کی اونچی اڑان نے تمام ریکارڈز کو پاش کر دیا۔ تاریخ میں پہلی بار سونا کی فی تولہ قیمت 5,40,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $5,300 فی اونس میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سونے کی بڑھتی قیمتوں کو بریک نہ لگ سکی۔ سونے کی فی تولہ قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $5,300 فی ڈالر اونس میں ٹریڈ ہونے لگا۔ 24 گھنٹے میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 16,000 روپے کا اضافہ ہوا، جس سے خالص 24 کیرٹ سونا 5,40,000 روپے فی تولہ ہو گیا، جبکہ 22 کیرٹ سونا 4,95,000 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ کاروبار کے حالات ختم ہوئے پڑے ہیں تو عوام بھی پریشان ہوئی پڑی ہے۔ اس کو حکومت کو چاہیے اس کے اوپر ذرا غور کرے، عوام کو ریلیف دے، کوئی ڈالر کو روکے، حالات بہتر کریں۔ بہت پریشان ہے۔ ٹرینڈ آ گیا آرٹیفیشیل کا، سونا بالکل کوئی نہیں لگا ہے، کوئی نہیں خرید رہا۔ اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ کون خریدنے والا، کوئی قوت خرید بالکل ختم ہوگی۔ جیولرز کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سونا مزید مہنگا ہو کر نئے ریکارڈ قائم کرے گا۔ عالمی منڈی کی طرف سے ہے اور ڈالر فی اونس کے حساب سے 5,300 منڈی چل رہی ہے، تو اس حساب سے آپ دیکھ لیں بازار میں کوئی بھی بندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا سوائے جولر حضرات کے۔ اور دوسرا یہ ہے کاروبار کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں۔ شہریوں کے مطابق سونا خریدنا اب خواب بن چکا ہے۔ سونے کے بعد اب چاندی بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں چکی آٹے کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ، کئی جگہ آٹا نایاب ہو گیا۔ لیاقت پور کی مارکیٹ میں آٹا 5200 روپے فی من فروخت۔ ادھر کوٹ ادو میں گندم مہنگی ہونے سے چکیوں پر آٹا ہی نایاب ہو گیا۔
लियाकतपुर में चक्की आटे की कीमत में इजाफा। आटे का सरकारी रेट 3620 रुपए फी मन मुकर्रर, जबकि मार्केट में आटा 5200 रुपए फी मन फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना था कि गंदम 2000 से 2200 रुपए फी मन के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। 2200 रुपए गंदम का रेट था और अफगानिस्तान में गंदम नहीं गई, इसलिए आटे का रेट क्यों ज्यादा हो गया है? कम की हम सर 2200 रुपए के गंदम सेल की थी, अब जो है ना 5000-6000 रुपए में आटा खरीद रहे हैं। ये हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं, मेहरबानी करके ये हमारा जो है ना ये गरीब आदमी का जो है इनका फौरन मामला हल किया जाए। उधर कोटद्दू में गंदम महंगी होने से चक्कियों पर आटा नायाब हो गया। प्राइवेट चक्की आटा 4500 से 5000 रुपए फी मन फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से रिलीफ पॉइंट्स कायम कर दिए गए। रिलीफ पॉइंट्स पर आटा 905 रुपए का 10 किलो पैक फराहम किया जा रहा है। दूसरी जानिब आटे के बढ़ने के रेट्स पर काबू पाने के लिए महकमा फूड बहावलपुर ने इकदाम तेज कर दिए। जिला भर के 278 फिक्स सेल पॉइंट्स पर मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी गई। PFC शहबाज इकबाल सुपरा के मुताबिक 10 किलो आटे के 42,000 थैले रोजाना की बुनियाद पर फराहम किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्वालिटी की शिकायत किसी किस्म की हमारे नोटिस में नहीं आई है जी। हम डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे मिलों के सैंपल ले रहे हैं, ओपन मार्केट से सैंपल ले रहे हैं जी। मिल से सैंपल नहीं ले रहे हम जाके ओपन मार्केट से शॉप से सैंपल कलेक्ट करते हैं और उससे पे जाके जो है ना लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग करवाई जाती है। तो हमारे सामने कोई भी सैंपल फेल नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा मतलब जो आवाम की अफजाने सेहत के असूलों के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है। DFC शहबाज इकबाल सुपरा का मजीद कहना था कि फ्लोर मिल से आटे की क्वालिटी को चेक करके मार्केट में लाया जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा रोही बहावलपुर। जलालपुर पीरवाला में नादरा स्टाफ की मुबैना गफलत मियाँ बीवी 13 साल से जहनी अजियत में मुब्तला हैं। कवायफ इंदराज के वक्त मामूली गलती ने मियाँ बीवी को बहन भाई, सास को हकीकी माँ और बहू को हकीकी बेटी बना दिया। रिकॉर्ड दुरुस्तगी के बगैर बच्चों के बेफाम और शनाख्ती दस्तावेजात का इजरा भी नामुमकिन है। कौमी शनाख्त न होने से बच्चे तालीम से भी महरूम हैं। जलालपुर पीरवाला में नादरा की बजाय छोटी सी गलती ने पूरे खानदान को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। 13 साल पहले शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए नादरा ऑफिस जाने वाले मियाँ बीवी के कवायफ का गलत इंदराज हो गया, जिसने रिकॉर्ड में मियाँ बीवी को बहन भाई, सास को हकीकी माँ और बहू को हकीकी बेटी में तब्दील कर दिया। क्या बताते हैं जी? सर 2012 में मेरी शादी हुई थी और मेरी बीवी का शनाख्ती कार्ड मेरे हवाले से बनने के लिए गया था। नादरा वालों ने कहा भाई अपने घर से किसी बड़े को लेके आए। मेरे घर में मेरी बड़ी वालदा थी, ठीक है ना, वो उसको लेके चली गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी वालदा को लेके आए, उन्होंने कहा घर से किसी बड़े को लेके आए। वो मेरी वालदा को लेके चले गए। मेरी वालदा ने वहां पे जाके अंगूठा लगा दिया और उनकी गफलत की वजह से जो है ना हमारा मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो आपके सामने बहन भाई का रिश्ता इख्तियार कर गया है। मैं शनाख्ती कार्ड बनवाने गई थी, नादरा वालों ने कहा घर से बड़े को लेके आए। उसने ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप को लेके आए या अपने शोहर के माँ बाप को लेके आए। मेरे घर में तो मेरी माँ जैसी यही थी सास। मैं इसको लेके मैंने कहा मैं आपको बुलाया, नादरा वालों ने आप जाके अंगूठा लगा दें। इन्होंने अंगूठा लगा दिया। अगले उन्होंने पूछना था ना कि ये आपकी माँ है कि आपकी सास है। भाई हम चाहते हैं कि हमारा शनाख्ती कार्ड सही हो जाए, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हमें शनाख्ती कार्ड की दुरुस्तगी चाहिए। नादरा वालों को कहे कि मेहरबानी करें, पहले ही बहुत धक्के खा चुके, हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, हमारा शनाख्ती कार्ड ठीक कर दे। वो मुतासरीन ने रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए मुतलका कवायफ जमा करवा दिए, मगर 13 साल गुजरने के बाद भी रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं किया जा सका, जिसके बायस मुतासरा मियाँ बीवी के 4 बच्चों का बेफार्म न बना और वो कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ तालीम से भी महरूम है। मुतासरा जोड़े का बड़ा बेटा तालीम हासिल न कर सकने के बायस आज गलियों में अंडे बेचने पर मजबूर है। मुतासरीन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाई जाए ताकि वो शनाख्ती दस्तावेजात हासिल कर सकें। इस तरह उनकी मुश्किलात में कुछ कमी वाक़ई हो सकेगी। कैमरामैन उमर दराज के साथ वकास सिद्दीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। उधर तरंडा मोहम्मद पनाह की बस्ती अलादाद मिशन में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का तलबा के साथ नारवा सलूक, 20 से ज्यादा बच्चों को स्कूल से ही निकाल दिया। बच्चे कई रोज से ज़ेवर तालीम से महरूम हैं। वालिदैन ने पैफ इंतजामिया और महकमे तालीम को वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा दी। वालिदैन और बच्चे स्कूल के बाहर सरापा एहतजाज हैं। ऐसे पढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। तरंडा मोहम्मद पनाह की बस्ती अल्लाहदाद मिशन में प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल ने 20 से ज्यादा बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। नन्हे तलबा और तालिबात कई दिन से तालीम से महरूम। बच्चों के वालिदैन ने पैफ इंतजामिया से महकमा तालीम को वेबसाइट के जरिए शिकायत दर्ज करा दी।
वालिदैन ने इल्जाम आयद किया कि प्रिंसिपल अदनान बच्चों के साथ नारवा सलूक करता है, नाजायज पैसे भी वसूल करता है। मजीद इंकशाफ किया गया कि प्रिंसिपल तलबा से घर से चावल, शहद और खाने पीने की अशिया मंगवाता है। डिमांड पूरी न होने पर तलबा से हद तक आमेज रवैया अपनाता है। हेडमास्टर के खिलाफ आवाज उठाई तो हमारे बच्चों को निकाल दिया गया। इना जो हेड मास्टर है अदनान अयाज है, असर बाल स्कूल पढ़ जान और दौरान तालीम बालें को रोज मुतालबात करना है। स्कूल का मास्टर जरा ये सही भी को नहीं, वो तो बाद बाले को पैसे वसूल करने, वो तो बाद ये जरा ना इदा तबादला किया वने, इथों को खत्म किया वने। नन्हे तलबा और तालिबात का कहना था कि प्रिंसिपल कभी चावल मांगता है, कभी फीस। हमें स्कूल से निकाल दिया गया है। वालिदैन गरीब हैं, कहां से प्रिंसिपल की फरमाइशें पूरी करें। कभी आटा मांगा जाता है और कभी पैसे और कभी तिल मांगे जाते हैं और कभी चावल। हमारे माँ बाप गरीब हैं, हम कहाँ से लेकर दें, और हमारा ये स्कूल है और स्कूल हमारे गांव में नहीं है। हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, कभी कापे मांगते हैं, कभी तेल, कभी आटा, तो जो भी ना दे उसे बाहर निकाला जाता है। बच्चों का मजीद कहना था कि इलाके में और कोई सरकारी स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूलों की फीसें अदा नहीं कर सकते। वालिदैन और बच्चों का हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने और इंक्वायरी कराने का मुतालिबा। दूसरी जानिब स्कूल प्रिंसिपल अदनान को मुतादिद कॉल्स की गई, प्रिंसिपल ने फोन तक नहीं उठाया, मौकफ देने से इनकारी हो गया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोही तरंडा, मोहम्मद पनाह। हाईकोर्ट मुल्तान डिवीजन बेंच ने जलालपुर पीरवाला में ईद के रोज कत्लेआम केस का फैसला सुना दिया। जस्टिस चौधरी शहराम सरवर और जस्टिस सरदार अकबर अली पर मुश्तमिल बेंच ने 3 मुल्जिमान अली नवाज, गुलाम खिजर और खुर्रम शहजाद की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जजेस जस्टिस चौधरी शहराम सरवर और सरदार अकबर अली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने जलालपुर पीरवाला में ईद के रोज होने वाले 10 कत्ल और 18 अफराद को देरीना दुश्मनी की बुनियाद पर जख्मी करने के मुकदमा में सेशन अदालत से सजाए मौत पाने वाले मुजरिमों के अपील का फैसला सुना दिया। डिवीजन बेंच ने 3 मुजरिमों अली नवाज, गुलाम खिजर और खुर्रम शहजाद की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। अब तक मजमूई तौर पर 13 मुजरिमों को बरी कर दिया गया है। पुरानी एक रंजिश चली आ रही थी, ये 2 बरादरियां हैं, इनके आपस में 2019 में ईद उल फितर के रोज़ ये वक़ुआ हुआ जलालपुर पीरवाला में, जिसमें 10 से ज़्यादा लोग मर्डर हो गए, 19 लोग तकरीबन इसमें इंजर्ड थे। फिर 2022 में ये नीचे एडिशनल सेशन जज साहब असफ अली राना साहब ने ये इस केस का फैसला किया, जिसमें उन्होंने 9 लोगों को जो है वो डेथ डिक्लेयर की और 7 लोगों को उन्होंने वो लाइफ में इम्प्रिजनमेंट का वो ऑर्डर किया। सेशन अदालत ने 11 मुलजिमों को सजाए मौत, 5 को उम्र कैद सुनाई थी। इस वक्त सेशन अदालत से 7 मुलजिमों को बरी किया गया था। मुलजमान पर 10 अफराद को कत्ल करने और 18 अफराद को जख्मी करने का इल्जाम था। लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच में, जिसमें डिवीज़न बेंच में, जिसमें आज शहराम सरवर साहब और सरदार अकबर अली डोगर साहब ने फैसला सुनाते हुए 3 मुलजमान को जो डेथ थी वो लाइफ में कन्वर्ट कर दी। खुर्रम शहजाद है उसमें अली नवाज है और गुलाम जाफ़र है, उनको जो है वो लाइफ में कन्वर्ट कर दिया गया। बाकी दीगर मुलजमान को वो बरी कर दिया गया। मुलजमान ने 2019 में पुरानी दुश्मनी पर ईद की नमाज के बाद अपने मुखालफिन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसकी वजह से 10 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए थे। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ मार इमरान नवाज, रोही न्यूज़ मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया के मुबैना नाअहली या गफलत शाहरुख आलम कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हैं। करोड़ों रुपए लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स खराब हो गई। इंतजामिया ने लाइट्स को ठीक करने के बजाय एनर्जी सेवर्स ही लगा दिए। सलमान जमीर मजीद अपडेट करेंगे। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है स्ट्रीट लाइट्स की? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर की मेन शाहराह पर स्ट्रीट लाइट्स का ना जलना इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत कहलाता है। इसी तरीके से मैं मौजूद हूं मुल्तान की पोर्श कॉलोनी की मेन स्ट्रीट पर। ये है शाहरुख आलम और शाहरुख आलम की मेन स्ट्रीट कहलाई जाती है, जिस पर तमाम तर ब्रांड्स और होटल्स और रेस्टोरेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। मगर सतन ज़रीफ़ी ये है कि इस रोड पर इंतजामिया की जानिब से लाइट्स तो लगा दी गई, मगर वो लाइट्स को जलाना ही भूल गई, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोग जो हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रात होते ही ये इलाका, जो कि एक पोर्श इलाका कहा जाता है, ये अंधेरों में डूब जाता है और उसके बाद अगर कोई यहाँ से लेट नाइट भी गुजर रहा हो तो मुख्तलिफ किस्म के हादसात भी रोनुमा होते हैं। याद रहे कि जिस रोड पर लाइट नहीं होती और अंधेरे
वहां पर होते हैं तो वहां पर जराइम पेशा अफराद जो हैं वो भी सरगर्म हो जाते हैं, क्योंकि उनकी अंधेरा जो है उनकी वो चांदी के मानंद जो है वो इस काम करता है कि अंधेरे में वो नकब लगाकर खड़े होते हैं और लोगों को लूट लेते हैं। इंतजामिया से गुजारिश की जाती है कि करोड़ों रुपए की लागत से ये लाइट्स जो लगाई गई हैं, इन लाइट्स को चालू करें और जो लाइट्स रिपेयर हो सकती हैं उनको रिपेयर किया जाए, ताकि ये जो लाइट्स जिन मकसद से लगाई गई थी उनका वो मकसद जो है वो पूरा हो सके और शहरी जो है बाहिफाजत अपने मकामात पर पहुंच सके। जी बहुत शुक्रिया सलमान ज़मीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर रहीम यार खान की तरीन कॉलोनी में सीवरेज के संगीन मसाइल में कमी ना आ सकी। वासा इंतजामिया की जानिब से एक हफ्ते में मसाइल हल करने के वादे पूरे ना हो सके, एक बार फिर एहतजाजी धरना दे दिया। रहीम यार खान की तरीन कॉलोनी में सीवरेज के संगीन मसाइल ताहाल हल ना हो सके, जिसके बायस इलाका मकीन एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। वासा इंतजामिया की जानिब से एक हफ्ते में सीवरेज मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई गई थी, ताहम मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बावजूद अमली इकदाम ना हो सके, जिस पर शहरियों में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। इलाका मकीनों का कहना था कि वासा की जानिब से महज एक दिन अलामती कार्रवाई की गई, जबकि उसके बाद मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली गई। मुजाहिरीन के मुताबिक वासा की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है, जबकि जमीनी हकायक यूं के तू हैं। मैं तरीन कॉलोनी गली नंबर 2 और 1 का रहायशी हूँ। अरसा 3-4 माह से हमें बहुत ज़्यादा ये दिक्कत है कि पानी वहाँ गलियों में खड़ा होता है, और वासा को हमने बारहा शिकायत की हैं और डिप्टी कमिश्नर को भी हमने एप्लीकेशंस दी हैं, लेकिन यूं का तू है मसला। और मस्जिदें वो मतलब वीरान है इस वजह से कि लोग गंदे पानी की वजह से वहाँ गुजर के नमाज के लिए नहीं जा सकते, स्कूल में बच्चे नहीं जा सकते। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया है कि आपने हमारे इस मसले को हाईलाइट किया है। ये हमारा बहुत दरीना मसला है, कितने महीनों से हम ये यहाँ पर दरख्वास्तें दे रहे हैं, डीसी साहब को दे रहे हैं, वासा चेयरमैन को दे रहे हैं, इसके बावजूद इसका कोई अभी तक हल नहीं निकला। हमारे यहाँ के बच्चे, यहाँ बूढ़े लोग, औरतें, लेडीज़ इस तरह का शिकार है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वासा इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सीवरेज लाइनों की मुकम्मल सफाई और मुस्तकिल हल यकीनी बनाया जाए। मुजाहिरीन ने वाज़े किया कि जब तक सीवरेज मसाइल का अमली और पायदार हल नहीं निकाला जाता, एहतजाजी धरना जारी रखा जाएगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान की हॉर्टिकल्चर एजेंसी का शहर को सरसब्ज बनाने का मंसूबा। हेड मोहम्मद वाला रोड पर 5 से ज्यादा पाम के दरख्त लगा दिए गए। उधर PHA भावलपुर की लापरवाही आम शाहराएं साए की नेमत से महरूम हो गईं। डिवाइडर पर लगे कॉर्नोपॉक्स के 200 से ज्यादा दरख्तों को काट दिया गया। PHA की नाअहली के बायस भावलपुर की अहम शाहराएं साए के नेमत से महरूम हो गईं। डिवाइडर पर लगे कोनो काप्स के 200 से ज्यादा दरख्तों को काट दिया गया। दीगर शाहराहों से भी ग्रीन बेल्ट लगाने के पेश नजर दरख्त काटने की तैयारी। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का कहना था कि दरख्तों के बच जाने वाले तनों से कनोपियां बनाई जाएंगी। दरख्तों को इंतजामिया की इजाजत के साथ काटा गया है। उधर मुल्तान की हॉर्टिकल्चर एजेंसी का शहर को सरसब्ज बनाने का मंसूबा। हेड मोहम्मद वाला रोड पर 50 से ज्यादा पाम के दरख्त लगाए गए। शजरकारी से सड़क का मंजर बदल गया। शहरियों का कहना था कि माहौल दोस्त दरख्त आलूदगी में कमी और सरसब्ज मुल्तान की पहचान बनेंगे।